Anyone here? Okay, yes. Thank you, thank you. I'm so sorry. वो हफ्ते में एक ही दिन है. Yeah, I just मुझे याद था till 7:30 then. Okay, am I audible? Yes, good evening, Pranav. Aditya, Raj, Pranav, Ninad. Okay, good. Clear. So yeah, we'll be using what is it? Yes, we will be using PenTab. Perfect. Visible? आप लोग को दिख रहा है? Good. So I think in CBSE we are going ahead with this. Yes, I can. Yes, now you all can speak. So I think in your school, current electricity chapter has been started. So let's revise that. Will that be okay, or you want something else? नहीं सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं. Chalo, done. So I'll be going through. Where is it? Current and electricity chapter. Okay. ठीक है. इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट मेरा कौन सा बुक है? आई जनरली यूज प्रदीप फॉर रेफरेंसेस. सो बेसिकली ऑल योर सीबीएसई टेक्स्ट बुक एंड देन प्रदीप. ठीक है. So first concept is what is charge? Charge is denoted by Q. Unit is coulomb. Charge क्या है? आपको पता है there are two types of charges, plus and minus. Positive charge, negative charge. ठीक है. टेक्स्ट बुक में ज्यादा दिया नहीं है. So chapter starts with the charge concept. So basically let's say how does the charge get produced? Mainly because of friction or rubbing. हम लोग ये see how do you want to go? I am revising this, so I am just touch. बराबर है ना? और should I have to अच्छे से पढ़ाऊं मैं? We are on a revision mode ना? Correct? Am I right or can someone reply? Chat. क्या हो गया? Everyone there? No. Hari bol. Am I audible? Yes. So yeah, friction or rubbing की वजह से the charge get produced, and there are two more ways. Conduction and induction. Conduction में क्या होता है? Suppose there is there is one charge object A and there is one more another charge object B. Oh sorry, uncharged. So suppose this is a charged object. Say it is a positively charged object. इसमें पूरा positive charge है. And this is an uncharged object. इसमें कोई charge नहीं है. ठीक है? So now if you touch A को B के साथ conduct करेंगे. Conduction. So if you will touch A to B, then the same charge, the positive charge will also shift to this place. समझ में आ गया? This is known as conduction. What does induction do? Now induction, what does it do? Not audible? Okay. So am I audible now? Or should I speak slow? See, you have to Audible. respond fast. Am I audible now? Yes sir. Okay. So I am audible to Pranav. What about Aditya, Raj? I Sir, believe you. audible sir. Ninad, yes sir, audible. Raj, not audible. Pranav, audible.
Type it, Baba. Aditya, where are you? Sir, I was speaking to you. अच्छा, आप ही बोल रहे हैं क्या? तब से मुझे लग रहा है प्रणव बोल रहा है. Okay, so Aditya, Pranav, and Ninad. Raj, can you check with your net? I think there is an internet connection or something. ठीक है, तो charge gets produced because of friction or rubbing. ये सब आपकी बुक पे नहीं है, ना ही बोर्ड में आएगा, so don't worry. Yeah, refresh. So ये बोर्ड में नहीं है. This is just kind of थोड़ा सा extra knowledge है. बोर्ड में कुछ direct question नहीं है इसके ऊपर. Then second thing is how is charge transferred? Sometimes through conduction. That is where there is actual touch. Conduct hota hai, so same charge get transferred. The main point is the same charge gets transferred. Now in the process of induction, which is the second process, say there are two objects. Say there are two objects, A, and then there is a one more object B. Now what happens in induction is, say A is something, some charge, say plus charge. Okay. So if A is a plus charge object, what you have to do is, now this in the induction, you don't have to touch it. You don't have to touch it. You have to just bring it closer. आप इसको close लाइए and then wait. Don't do anything. Now what will happen is, there is a word from induction. The word comes induced. Induced. In English, you know what is induced? Can someone translate in English what is induced? Induce कर देना. Let's say you hear Modi's lecture and you get induced. वो अर्नब गोस्वामी का 7 PM का आपने शो देखा होगा. अगर मैं वही देख रहा था एक्चुअली, उसमें ही लेट हो गया. So 7:30 तक I remember, then I got carried away. Persuade, yeah, kind of. Like you get induced, you get carried away, you get fully highly motivated, highly carried away by it. So आप उसके अंदर induce आ जाते हैं. You get influenced by that person, that personality, that aura, that energy, that synergy. So similarly, what happens here is, because of this positive charge which is on this object A, and because of its proximity to B, it's not touching. So you have to understand, in conduction there is a contact. यहाँ पे contact होता है. Induction में there is no contact. So it's not touching, but it is very close. You can see it is very close. So what it does is, it induces its opposite charge on the other object. इसके इस side पे ना, it induces opposite charge. So this is positive and this is negative. So there is an attractive force acting between them. Click कर रहा है आपको? Now try to understand this thing. This object A is a positive object. Object B is basically uncharged. याद है यहाँ पे मैंने बताया, it's having no charge. So now suddenly a negative charge is induced. To balance out, यहाँ पे उसको positive charge also gets induced. ठीक है, ये थोड़ा सा हाई फाई थ्योरी है, आपको जो शॉर्ट में समझाने के लिए बता रहा हूँ. सो इसके प्रेजेंस में ए को जब आप पास में लाते हैं, ए को पास में लाए, इसकी वजह से बी के अंदर एक इंड्यूस हो जाता है चार्ज. यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाता है? नेगेटिव. नाउ व्हाट द साइंटिफिक और व्हाट द साइंटिफिक कम्युनिटी और इंडस्ट्रियल लेवल व्हाट दे डू इज आपको अंडरस्टैंडिंग ले बोल रहा हूँ. लेट्स सपोज नाउ यू रिमूव ए अगेन. आप ए को दूर ले जाइए, अगेन बी विल बी न्यूट्रल. बी वापस नॉर्मल हो जाएगा. देयर विल बी नो चार्ज देयर. अगेन आप उसको पास में लाइए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, फिर से दूर ले जाइए, देयर विल बी नो चार्ज हियर. नाउ व्हाट दे डू इज, टू कीप दिस नेगेटिव चार्ज, नाउ अपोजिट चार्ज रखने के लिए दे ग्राउंड दिस पार्ट. इसको ग्राउंडिंग कर देते हैं, इस पार्ट को. तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है, एंड इमीडिएटली इसको दूर ले जाते हैं. सो इट्स ऑल डन साइमल्टेनियसली. So what happens is, you are artificially induced with negative charge. So ये प्रोसेस आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं है, so don't worry, this is not in the 10th board. 10th बोर्ड में नहीं है ये, ठीक है. ये जस्ट आपको नॉलेज वाइज दिया हुआ है. I'll just erase this. Where is it? ठीक है. So basically there are two ways. Friction और rubbing की वजह से, the cause of the charge is friction or rubbing. ठीक है, and it can be carried in two ways, either conduction or induction. In conduction you have touch, physical touch is required, and same charge is transferred.
In induction what happens? In induction there is no physical touch, कोई टच नहीं है वहां पे, प्लस अपोजिट चार्जेस इंड्यूस्ड. ठीक है. So these are the two ways जो बोर्ड में नहीं है, don't worry about it, ये just एक understanding ले. Now this charge in general, this whole thing charge concept is static. Static means रुका हुआ, थांबा, on hold है ये. It's not moving as such, ये अपने आप से नहीं move कर रहा है, ये रुका हुआ रहता है. Charge is just the body is charged, the charges are present, they are not moving here and there. When this charge starts to flow or it becomes dynamic, when this charge starts to flow, it becomes dynamic. This is where your chapter starts. This becomes current. So now you must be aware of, आपने पढ़ चुके होंगे, what is the definition of current? Rate of flow of charge. Rate of flow of charge is called as current. ठीक है. If you have understood this point, चार्ज एक होता है, उसको फ्रिक्शन लगता है, देयर इज अ कंडक्शन इंडक्शन. ज्यादा डिटेल में नहीं भी समझ में आया, नो प्रॉब्लम. सो दिस चार्ज इज स्टैटिक चार्ज, एंड व्हेन दिस चार्ज स्टार्ट्स टू फ्लो, सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट. प्लीज टाइप करंट. ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप करंट. ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप करंट, so that I'll understand that you have understood this point. अरे वीडियो चला के सो गए क्या? टाइप करंट, CURRENT. কুড়ি বাবা এখানে কইন বলবে না কি দাদা কি হবে? अरे बोल, no one. Sir, we have typed. You have typed? I can't see. Yes, sir, we have typed. At rest current. Oh, I'm so sorry. मेरा चार्ज वाला पॉइंट, चैट वाला पॉइंट ही ऊपर था. Somewhat like lightning. ओके, आप लोगों ने बहुत कुछ टाइप कर दिया, मैंने देखा नहीं. सॉरी. लेट मी सी. Refresh charge, somewhat like lightning, persuade, rate, at rest current, sir, understood, current types. Okay, yeah, done. So I'm sorry, I was not seeing the current type screen. I was seeing somewhere else. ठीक है. Yeah, so something like lightning which you have studied in class 8. वो आपको याद होगा. Clouds याद है? Clouds कैसे बनते थे? Lightning is either between two clouds, आदित्य को मैंने पढ़ाया, और between cloud and the earth. There are two ways. So इन दो clouds के बीच में फ्रिक्शन होता था, इसलिए चार्जेस आ जाते थे. फिर जैसे ही वो चार्जेस बहुत पास आ जाते थे बट अपोजिट चार्ज होते थे, तो ये एयर जो कि जनरली इंसुलेटर रहता है, इट लूजेस इट्स insulation, and for split of second it will allow the discharge to happen, and that discharge along with the strong heavy voice and light is known as lightning. Same thing there on the earth. Sometimes it becomes so lower, or some heighted object, building कुछ पास में आ गई, suddenly the lightning happens. Even otherwise on the ground also it happens. ठीक है. So that was something like lightning. Now the best example for this conduction and induction is, आप लोगों ने ये किया होगा. Now you see me, आप लोगों ने ये किया होगा, वो स्केल के साथ किया है. टाइप स्केल with your ruler. Yeah. So scale के साथ जब आप ये करते हैं, what happens? Friction. You can see all the three phenomena happening here. See there. Yes, electrostatic charge. That is what the word is, electrostatic. So that static charge which I was mentioning before. Yes. So what is happening? You are doing friction. Because of the friction, charge is getting produced in this thing. Now you take paper. When you bring close to the paper, what happens? Tell me, what is it? What is that process? मैंने अभी आपको बताया, जब उस फ्रिक्शन की हुए आपको लेके आते हो यहाँ, तो अट्रैक्शन होता है. बट व्हाट इज द टेक्निकल, no. What is the technical word? What is the thing which is happening? You're not induced. Yes, induction. So the happening thing is induction. Paper is some say the positive charge. Sorry, the pen is positive charge. Paper is having no charge, but then the pen induce opposite charge on the paper, so it gets negative charge and it attracts, और इसलिए paper चिपक जाता है. Then what happens? When the paper gets sticks, what happens?
टाइप फास्ट, कम ऑन यार, बोलो ना. When paper gets stuck to it, then what will happen? Now are you typing? Charging neutral, no बाबा, आप लोग समझे ही नहीं रहे थ्योरी. देखो, तीन ही स्टेप्स थे ना, चार्जिंग, then there is conduction and there is the induction. न्यूट्रलाइजेशन, नो नो नो, वेट, आप लोग कहीं और जा रहे हो, वेट कंफ्यूज हो रहे हो. मैंने फ्रिक्शन किया, जब मैंने फ्रिक्शन किया चार्ज जनरेट हो गया, लेट सपोज पॉजिटिव चार्ज, आई एम जस्ट गिविंग, मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव, आई डोंट नो, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज, देन आई हैव पेपर्स, स्मॉल स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर्स, वो मैंने डाला. आपने उसको टच किया क्या पेपर को? नहीं ना, थोड़ा दूर से उसके पास लेके जाते हो ना. दूर से जब उसके पास लेके जाते हो, व्हाट विल हैपन? Heat will induce this positive charge, this positive pen will induce negative charge on the paper. Because of this negative charge, it will get attracted towards the pen, because like charge repel, unlike charges attract. So unlike charge को attract होगा, correct? So then what happens? The paper gets sticks with the ruler. So the paper gets stick to the ruler. Then what happens? Does it remain sticked? क्या वो पेपर के हमेशा स्केल के साथ चिपक के रहते हैं, पेन के साथ? No, not forever, for some time. Why? Because now the conduction is happening. आपको समझ में नहीं आ रहा है? पहले इंडक्शन हुआ, इसकी वजह से चिपक गया, आप लोग दोनों टच में आ गए ना. So when there is a touch, what is that process? Conduction. So now the conduction is happening, and in conduction what happens? Same charge gets transferred into the paper. So if this pen was having black pen was having the positive charge, same positive charge comes in the paper. So then what happens? Like charges repel, so the paper fell down. Yes. फिर से पेपर गिर जाता है, फिर से आप थोड़ा सा और रब करते हो, फिर पास में लाते हो, फिर इंडक्शन होता है, उसमें अपोजिट चार्ज आता है, फिर वो चिपकता है, फिर चिपकने के बाद कंडक्शन हो जाता है, फिर पेपर गिर जाता है, फिर पास में लेके आते हो, फिर इंडक्शन होता है, फिर चिपकता है. गॉट इट? गॉट इट? ओके. तो ऐसे बहुत सारे हैं. दूसरा ये देखा होगा आपने, आप ये देखो, ये चेयर देखिए, प्लास्टिक की चेयर, ये हम लोग प्लास्टिक की चेयर पे बैठते हैं, ये वाली चेयर, ये प्लास्टिक वाली चेयर, नीलकमल, उसमें यस टर्किश टॉवेल, करेक्ट. समझ गए, सबने मस्ती की है. वो एक लड़के को बोलने का ऐसे बैठने के लिए, और पीछे से टर्किश टॉवेल मारने का, देन सडनली यू टेल हिम टू कीप हिज फीट डाउन और यू टच हिम, झट करके चटका बैठता है. करेक्ट. फ्रिक्शन, नीलकमल एंड टर्किश टॉवेल से फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन हो गया तो चार्ज आ गया, चार्ज आ गया तो उसको डिस्चार्ज होने के लिए एक प्लेस चाहिए. अरे ये रेगुलर डे इवेंट में होता है. हम लोग, स्पेशली मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, हम लोग वॉक करके आते हैं, घर का कुछ डोर नॉब टच करते, झटका लगता है. मैंने किचन के टैप में मुझे बहुत बार लगा है. यस, टैप, आदित्य ने लिखा है, किचन का टैप टच करते ही. अरे कितनी बार मैंने मेरी माँ को टच किया तो झटका मारती है वो. बिकॉज माई मदर इज ओल्ड, शी वेयर्स दिस रबर का चप्पल, उसको फीट में दर्द होता है, सो शी हैज दिस डॉक्टर चप्पल, दे कॉल इट. यस, बिकॉज ऑफ दैट रबर चप्पल शी इज ऑलरेडी इंड्यूस्ड, इन द सेंस शी इज ऑलरेडी इंडक्टर, वो इंडक्टर बोलो, मतलब इट्स इंसुलेटर, सो शी इज नॉट गेटिंग डिस्चार्ज. हम लोग कुछ ना कुछ जमीन को टच करते हैं, नंगे पैर चलते तो डिस्चार्ज हो जाते हैं. So suddenly sometimes I come and touch her and it's like she gives me a shock. Correct, you all got it. So this is what is charge. So now when this charge is static, this is known as static charge. When this charge starts to flow, then it becomes current. So now आपका जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो करंट से है. करंट को कैसे डिनोट करते हैं? I. We should know this. And what is its unit? एम्पियर, कैपिटल A. ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ चुका है. इंडक्शन, अट्रैक्शन, कंडक्शन, रिपल्शन. यस यस, ठीक है. सो वी नो रेट ऑफ फ्लो ऑफ, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, whenever in physics this word comes, rate of flow of, what does this mean? This means divided by time. Rate of बोला तो divided by time, you have to divide that thing by time. So हमें पता है I is equal to dx by dt, correct. So that's how the formula comes. I is equal to q by t, rate of flow of charge. Rate of flow of आपने कहाँ और पढ़ा है, याद है? Acceleration. What is acceleration? Rate of
change of velocity v minus u by t डिवाइड बाई t। और कहां पढ़ा है आपने रेट ऑफ फ्लो ऑफ, कहां पढ़ा और बताओ? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, पावर, गुड। रेट ऑफ डूइंग वर्क, परफेक्ट। रेट ऑफ डूइंग वर्क, मोमेंटम, वेरी गुड। मोमेंटम p, ए रेट वर्क, मोमेंटम नहीं रे, व्हाट इज इट? सेकंड लॉ, the force is directly proportional to the rate of change of momentum, not momentum, ये F is rate of change of momentum, that second law, yes। अच्छा बेटा, ओहो तुम लोग अब मुझे 11th 12th पढ़ाओगे। ओके नहीं, मैं 9th 10th की बात कर रहा हूँ। या angular momentum and all that is, angular acceleration is ahead, so p2 minus p1 by t, yes। ठीक है, सो बेसिकली इन रिमेंबर फिजिक्स में कभी भी द वर्ड कम्स रेट ऑफ, that basically means divided by time, so the formula comes I is equal to q by t। now जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, करेक्ट, so मैंने आपको पहले भी बोला ये चार्ज जो है ये अपने आप तो फ्लो करेगा नहीं, सो चार्ज अपने आप तो फ्लो करेगा नहीं, चार्ज को फ्लो करवाने के लिए एक डिवाइस लगेगा, बराबर है, उसको कोई ताकत देनी पड़ेगी जो उसको धक्का मारे, और उस डिवाइस का नाम क्या है? उस चीज को बोलते हैं, यस, बैटरी और सेल, इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, प्लस माइनस। और ये जो प्लस माइनस है यही उसको अट्रैक्ट और रिपल्स करते हैं। तो जो हमें पता है, हमें एग्जैक्टली पता है फ्लो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्लो होता है वो है इलेक्ट्रॉन्स, और जो फ्लो नहीं होता है तो, अरे हाँ वो एक चीज बताना आपको भूल गया, वो चार्ज कैसे बनता है जब फ्रिक्शन होता है तो। सपोज एक ऑब्जेक्ट है ए और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है। नाउ यू शुड नो दिस, एवरी क्या बोलेंगे इसको, एवरी एटम, और रेदर नॉट एटम, एवरी सब्सटेंस इज बाय डिफॉल्ट न्यूट्रल, वो अपने आप में न्यूट्रल है, इवन दिस पर्सन इज न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज नहीं है बाय डिफॉल्ट, ना ही प्लस ना ही माइनस, यस। एंड व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, दोनों में इक्वल है, बराबर है। सिमिलरली ये बंदे में भी इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, क्या होगा इसको? So because of this thing is neutral, electrically it is neutral। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, बट इसके पास भी इसकी एक क्या बोलते हैं उसको आप केमिस्ट्री में, न्यूक्लियस, फिर बाद में वो ऑर्बिट्स या शेल्स, ऐसा रहता है ना, बराबर है। सो उसमें जो लास्ट, यस, जो लास्ट शेल होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इधर वी से इट वैलेंस, या फिर उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो अपने न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, वो कितना अट्रैक्टेड है, एकदम टाइटली अट्रैक्टेड है कि लूजली अट्रैक्टेड है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एक न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को कितना टाइटली पैक करके रखता है, दैट इज व्हाट डिपेंड्स ऑन। सो नाउ लेट्स सपोज दिस इज ए, ये ए ऑब्जेक्ट का है, ए एटम का है, बी का भी वैसे ही होगा, उसका न्यूक्लियस है, उसका अपना ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, ठीक है, उसके शेल्स में भी उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो लास्ट वैलेंस शेल में होंगे। नाउ लेट्स अज्यूम ये ए है, ये बी है, लेट्स अज्यूम ए का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, ठीक है, ए वाले का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये अपने वैलेंस शेल को ज्यादा ज्यादा अट्रैक्ट करके रखता है, ये बी वाले में लूजली बाउंड है, इसका न्यूक्लियस इतना स्ट्रांगली इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं किया है, ठीक है, यस, वीक फोर्सेस। सो दैट्स व्हाई व्हेन द फ्रिक्शन हैपेंस, यहाँ पे जब फ्रिक्शन होता है तो क्या हो जाता है, ये बी वाला अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये जंप ओवर मार जाता है, बिकॉज इसका न्यूक्लियस
बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। सो जो पॉइंट है आपके लेवल पे बताने का, आप लोग तो बाप बन चुके हो, 11th 12th का सब पढ़ चुके हो, तो वीक फोर्सेस एंड नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एंड ऑल दैट स्टफ, so you know better, but I'm just revising. So what is a negative charge? Remember this at your 10th level. Negative charge means acceptance of electrons. This is very important. Acceptance of electrons. नेगेटिव चार्ज जो बन जाता है इसका मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, एंड इसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया है तो ये ए बन गया नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इसका बाय डिफॉल्ट इसके, लेट सपोज इसके पास 8 प्रोटॉन थे और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये तो न्यूट्रल था, पर अब इधर से एक उड़ी मार के इधर आ गया ना, तो अब इसके पास क्या हो गया, +1, 9 बन गए। अब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, इसके पास प्रोटॉन कितने रहे, 8 ही, पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9, तो दिस बिकेम नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, सही बात है। बट इसी की जगह इसके साथ क्या हुआ, बेचारे के साथ, बी के साथ, सपोज इसका भी कुछ नंबर था, सपोज 7 था, इसके पास प्रोटॉन 7 थे, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 7 थे, पर अब आपने इसमें से इसका एक वैलेंस शेल का उड़ा दिया तो -1 हो गया इधर, तो अब इधर कितने बचे, 6, तो अब इधर इलेक्ट्रॉन बचे 6, प्रोटॉन बचे 7, तो इसने कुछ पॉजिटिव ऐड नहीं किया पर इसका नेगेटिव चला गया, सो दैट्स हाउ इट बिकेम्स पॉजिटिवली चार्ज। So positively charged means donation of electron, ये important point है, donate, ठीक है। So positively charged मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, नेगेटिवली चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, दिस इज व्हाट इज ऑफ द पॉइंट। जो लेता है उसका वैल्यू कम होता है, हाँ, इसलिए लेने का नहीं। Can I extend the class or you want to get it finished by 9? It's asking me to extend. Donation of donation of electron increase positivity, yes, as you wish, ठीक है, let's see कहाँ तक खत्म होता है, then I'll decide. Okay. So हम लोग कहाँ पे थे, या बैटरी और सेल। so जैसे आपने पानी में पढ़ा है, वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बराबर है, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। वैसे ही कोई भी, हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, वो ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठा के लेके गए, छोड़ा तो धड़ाम नीचे गिरता है वापस, अर्थ की ग्रेविटी, कुछ भी चीज नीचे आती है अपने आप। सो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमेशा चीज फ्लो करती है। तो सिमिलरली देयर इज अ डिवाइस which is known as cell or battery, which has a plus terminal and a minus terminal. So the current is always flowing from plus to minus, ठीक है। Now there is a very unique and strange concept here. मतलब साइंटिस्ट लोग भी गलती करते हैं और फिर गलती छुपाने के लिए दिमाग लगा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनको लगा कि हर बार, जैसे आप इवन नंबर लाइन में भी देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर भी 1 2 3 4, नीचे भी 1 2 3 4, so +1 is always greater than -1, +4 is always greater than -4, similarly on y-axis. So they always have this thing that plus is higher and negative is lower. They always have this thing that प्लस से माइनस की तरफ जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है चीज, बराबर है। तो इन्होंने यही दिमाग यहाँ पे भी लगा लिया कि करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, और हाई पोटेंशियल मतलब प्लस, लो पोटेंशियल मतलब माइनस। बट देन व्हेन दे एक्चुअली फाउंड आउट, क्योंकि ये कब की बात है, आपने पढ़ा होगा वो डाल्टन थ्योरी, रदरफोर्ड थ्योरी, ये थ्योरी वो थ्योरी, देन दे फाइनली केम डाउन टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, बराबर। सो टिल देन यू नो एटम वाज इंडिविजिबल, नहीं ब्रेक हो सकता था। देन दे सेड नो नो, एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस, द सेंट्रल पार्ट इज न्यूक्लियस एंड देयर इज समथिंग रोटेटिंग अराउंड। फिर देन दे केम टू नो कि अरे इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। देन फिर तो नाउ देयर आर सम 32 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूट्रिनो, पुट्रिनो, पुत्रिनो, लत्रिनो, मत्रिनो, I don't know all the names, but there are around now, when you will study in your modern physics also, these things will come, and even in chemistry part it will come. There are 32 subatomic particles, so many, इतने हैं। So पहले इनके हिसाब से atom was indivisible, so that's why they thought of कि ये प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। इसके लिए इन्होंने क्या नाम दे दिया इसको, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट।
conventional. This is how it is accepted. But yes. But they later on realized, that positive charge तो कुछ move करता ही नहीं है. Positive charge तो move करता ही नहीं है. What moves is negative charge. Negative charge means electron. Proton तो nucleus के अंदर बंद रहता है. Proton तो move करता ही नहीं है. और जब proton move करता है तो बवाल होता है. क्या बनता है? Nuclear bomb. वो जो एनर्जी है वो तो न्यूक्लियर एनर्जी है. इधर इट कुड बी फिजन और इट कुड बी फ्यूजन. फिजन या फ्यूजन हो जाता है वो तो, क्योंकि प्रोटॉन तो मूव कर ही नहीं सकता. प्रोटॉन तो एकदम बहुत टाइटली पैक कंटेन जोन में है. तो आप सोचो ना इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी. सब प्लस 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 चिपका के बैठा रखा है दूर दूर. इसके अंदर कितना रिपल्सिव पावर होगा. मेक सेंस. सो दिस इज व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर बॉम्ब मींस नॉट एक्जैक्टली अ बॉम्ब बट न्यूक्लियर एनर्जी. So this is what is nuclear energy. So when protons don't move officially, but when they move, so then they create havoc. They emit huge energy. तो इसलिए प्रोटॉन तो मूव करते नहीं है. इन ऑल दी जनरल आपके केमिस्ट्री में भी पार्ट है. नॉट ऑल. ये सब करने के लिए आपको आर्टिफिशियली इसको कुछ ना कुछ आर्टिफिशियली टेम्परेचर हीट करो, बढ़ाओ, एक्स्ट्रा उसको एनर्जी दो, उसको क्या बोलते हो, उसको एक्साइटेड स्टेट पे लेके आओ, उसके सैचुरेटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट पे लेके आओ, तभी होता है वो. यस. बट हम लोग यार सब ज्ञानी बाबा हो गए. यू आर टॉकिंग ऑल हाई फाई पढ़ना. ठीक है. बट देन दे रियलाइज द पॉजिटिव थिंग तो डोंट मूव ओनली. व्हाट मूव्स इज नेगेटिव थिंग. बट दे हैव ऑलरेडी सेड कि अरे प्लस से माइनस की तरफ जाता है. सो व्हाट वी नो एग्जैक्टली इज माइनस से प्लस की तरफ जाता है करंट. वी नो कि करंट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जाता है. बट देन बिकॉज उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था तो इसके लिए उन्होंने कन्वेंशनल बोल दिया उसको. कन्वेंशनल डायरेक्शन मतलब दिस इज व्हाट इज एक्सेप्ट यूनिवर्सली. कन्वेंशनल. सो ये आपके बोर्ड में ये है क्वेश्चन 1 मार्क का. आज तक पूछा नहीं गया है बट इट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इस लेवल पे आ जाता है. डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है बट दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट एंड electron flow. So you should know what actually moves is electron, which is from minus to plus, but what we accept is plus to minus, and that's why it is called as conventional direction of current. So you should know this is important. ये concept कभी कभी 1 mark के लिए वो fill in the blanks में या उस तरीके गोल घुमा के पूछ लेते हैं. Actually the current flows from dash to dash. So you have to say minus to plus, but actually we know that the electron moves from minus to plus, but we consider current from plus to minus and that's why it is called as dash, conventional direction of current. So ऐसा कुछ एक आपको बोर्ड में आता है. इस बार तो क्या मालूम बोर्ड होगा भी नहीं होगा, but that's a different question. So यहाँ तक आ गए हम potential difference. Now this device which is used to create, this is called a cell or a, so if it's a single unit, it is called a cell. If it is more than that, 2 or more, then it is called as battery. Correct. Battery. Okay. So this is called as battery. So what happens is आपने ये आगे का पढ़ ही लिया होगा. वो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक स्ट्रक्चर. इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होती है, एक एनोड एक कैथोड. फिर ये इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होता है, कैटायंस एनायंस जो भी है वो टेक्निकल पता होगा. तो ये एक प्लस बन जाता है और एक तरफ से माइनस बन जाता है. तो ये उसको रिपेल करता है, ये उसको अट्रैक्ट करता है. सो इट स्टार्ट्स टू मूव. ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन खत्म होते जाता है, ये बनते जाता है, ये खत्म होते जाता है, ये बनते जाता है. इसके लिए आपने देखा होगा हमारा वो कभी कभी वो रिमोट खराब हो जाता है तो फिर हम उसको ठोकते हैं क्योंकि उसका वो सॉल्यूशन खत्म हो रहा है. क्लिक कर रहा है, वो सॉल्यूशन खत्म हो गया, इसके लिए उसका अंदर सेल ड्राई सेल है वो खत्म हो रहा है उसका. तो आप थोड़ा तो उसको हिला के थोड़ा उसको ठोकते हैं तो फिर से चलने लगता है वो. सो दैट इज दिस थिंग. ये आपके वापस बोर्ड में नहीं है, सो इट्स ऑफ नो यूज, बट यू शुड जस्ट नो दिस इज हाउ इट वर्क्स. एनायन कैटायन बनते जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उड़ते जाता है और ये रिपल करता है माइनस से माइनस को एंड ये अट्रैक्ट करता है प्लस की तरफ. तो ये मूव करते जाता है माइनस से प्लस. ठीक है. सो दिस वाज पोटेंशियल डिफरेंस. Now they have defined what is potential difference. I am extending this class for 10 minutes. ठीक है. Let me finish this topic. So this is already 8:50. So let's say, but why it's asking for extension? My class is I think till 9, na? Officially it's 8 to 9. Why it is asking for extension? I don't know.
8 to 9 तो है ही मेरा क्लास. Anyway, so now we are on this point of what is potential. Now we should know what is potential. हम लोगों ने इंग्लिश में वर्ड भी यूज किया होगा. अरे राज तुम्हारा पोटेंशियल क्या है? रिमेंबर योर पोटेंशियल. प्रणव तेरा पोटेंशियल बहुत भारी है. या हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना औकात. तुम्हारी औकात क्या है? Sir, as you have joined late, so it is but still that class timing was 8 to 9. So it's 8:53 now. So why it's asking me to extend? Even if I have joined late, it asks for extension from 15. हाँ, exactly. That's what I'm saying. ये बहुत जल्दी पूछ रहा था वो. Anyways, I have extended it. दिमाग खा रहा था वो, तब से रेड दिख रहा था. So I am speaking what is potential. हम लोग बोलते हैं ना कितना दम है तेरे में, कितना है बम में दम. बम में कितना दम है उसको बोलते हैं पोटेंशियल. गट्स, यस, कितनी तेरी दम है, दिखा औकात. So basically what it means is, so they have defined electrically, I mean officially, what is potential. I'll explain it to you. Now we know there is something called as charge. Now what have they done is, again this is not related to your book, this is just for your understanding, is something called as unit positive test charge. Is something called as test charge. Test charge means this is only used for test. एक imaginary, immeasurable, very low charge है. It's as good as zero charge, zero coulomb. ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि जीरो कूलम होगा तो मतलब वो चार्ज ही नहीं है, तो इसलिए उसको बोलते हैं, मतलब इट्स नॉट explained exactly what it is, but it's like very small charge which is of positive. It's a positive charge. It's a positive nature charge, positively charged, which was of very small charge next to zero. Yes. So this is, it's a hypothetical thing. It's nothing. It's just a hypothetical thing. Test charge बोलते हैं इसको. So now what they have done is, here let's suppose there is an object, say the object A. Now if the test charge is thrown near to this object, let's suppose it is thrown in this direction. ठीक है? So if the object, now if the test charge is moving and it, अभी देखो पहले आप समझो test charge क्या है. Test charge is something like, just to give you an example, something like ant. When you are walking, you don't even give a damn about नीचे कोई चींटी है क्या रोड पे, but the cheetah has to be very much careful to you. Similarly, any charge present in the any charge present in the vicinity of test charge, it has no issue with it. टेस्ट चार्ज से इस चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता. there is no effect on it. but टेस्ट चार्ज से एनी चार्ज बॉडी के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है. इसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता. मतलब ये इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल सकती, पर ये इसके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट डाल सकता है. आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लिक किया होगा. तो सिमिलरली इसका टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, अगर ये ऐसे मैंने इसको इस डायरेक्शन में थ्रो किया, देन सडनली इट गोस ट्यून, इधर से वो हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्लोजेस्ट था, सो इट रिपेल्ड. सो इट्स रिपेल्ड मींस दिस मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज था, और अगर ये दूर भाग गया तो ये पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए. बट इंस्टेड ऑफ इट अगर ये ऐसा जा रहा था एंड ट्यून, इस तरफ चिपक गया जाके, तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज था, बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट. like charges repel, opposite charges attract. So this will decide the charge of this part. Second thing, अगर मेरा टेस्ट चार्ज यहाँ से निकला, चाहे अट्रैक्ट हो चाहे रिफ्लेक्ट हो, इसके जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. his or her life will go on smoothly. पर अगर टेस्ट चार्ज समझो यहाँ बैठा हुआ है, बेचारा आराम से बैठा हुआ था, और कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट इधर से निकल गया, तो ये बेचारे का जीवन झंड हो जाएगा. अगर ये नेगेटिव चार्ज था तो इससे चिपकना पड़ेगा इसको, अगर ये पॉजिटिव चार्ज था तो इसको रिपेल करना पड़ेगा. So yes, so this charge object is not affected by the test charge, but the test charge is affected by the charged object. So this is a test charge. ठीक है, चलो whiteboard clear. Now why a test charge? So they have defined what is potential difference. So they, as per their definition, let us suppose this is point A and this is point B. ठीक है. सो नाउ व्हाट दे से, लेट्स सपोज ये आपका लिमिट्स, इंफिनिटी, फिजिक्स में है सब डेफिनेशंस आप कुछ कर चुके होंगे. सपोज देयर इज समथिंग नोन एज इंफिनिटी, फार फार अवे, बहुत दूर,
वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी 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 फार अवे। अगर एक मेरे पास यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जिसको मैंने भी आपको समझाया, उस चार्ज को यहां से लेके इस पॉइंट ए तक लाने में मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। सम वर्क हैज टू बी डन। ये अपने आप तो आएगा नहीं, इंफिनिटी पे था ये चार्ज, इसको यहां से लेके यहां तक लाने में कुछ काम करना पड़ेगा मुझे। सम वर्क हैज टू बी डन। सो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज from infinity to this point A. So that will be known as potential at point A. तो potential at point A का मतलब क्या है कि अगर एक टेस्ट चार्ज को मैं इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाऊं तो कितना काम करना पड़ेगा, दैट विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट ए। सो सिमिलरली व्हाट विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट बी? सेम इंफिनिटी से इस चार्ज को मुझे बी तक लाने के लिए कुछ एक काम करना पड़ेगा। तो इस चीज को कैपेसिटी ऑफ मूविंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज पोटेंशियल। तो आप लोग मेरे से ज्यादा अच्छी हाई डिफाइंड डेफिनेशन जानते हैं। राज इज ट्राइंग टू कम ऑन द स्क्रीन। सो पोटेंशियल एट पॉइंट बी विल बी वर्क डन। तो इसको मैं डब्ल्यू ए लिख लेता हूँ, इसको क्यू ए लिख लेता हूँ, सब चीज ए होगी। सिमिलरली ये वर्क डन बी हो जाएगा और ये क्यू बी बन जाएगा। ठीक है। But now because the same charge is moved to A and the same charge is moved to B, so एक QA और QB का मतलब नहीं रहेगा. This will be same. So work done to bring, इधर काम अलग लगेगा, शायद इधर लाने के लिए उसको कुछ अलग काम करना पड़ेगा, इधर लाने के लिए कुछ अलग काम करना पड़ेगा. So VA will be WA by Q and VB will be W by Q. अभी what the speciality और the हमारी खासियत क्या है? वी आर नॉट वर्किंग ऑन ओनली द पोटेंशियल, द पोटेंशियल इज ऑलवेज वर्क इन द डिफरेंस, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह से कुछ मूव करवाना है. सो इट इज ऑलवेज 2 पॉइंट्स, इट्स ऑलवेज रिलेटिव. इट्स लाइक वो डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर, इट्स ऑलवेज बिटवीन 2 पॉइंट्स. सो दैट्स व्हाई व्हाट हैड हैपेंड इज दे से, सो नाउ हमें पता है पानी ऊपर से नीचे बहता है, तो सेम चीज यहाँ पे नहीं होती. Let's suppose this is point B and let's suppose this is point A. So potential at point A is VA, potential at point B is VB. So if I say what is the potential difference between these 2 points? So I would say potential VAB, that is potential difference between point, will be VA minus VB, or you may say VB minus VA, whatever. उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम. सो अब मैं दोनों को, आप समझाने का पॉइंट समझो, इसको मैं इंफिनिटी से करूं फिर इसको भी मैं इंफिनिटी से लूं, दोनों का डजंट मेक सेंस. रेदर आई विल जस्ट डिसाइड दिस थिंग कि इधर से इधर लाने में कितना काम लगा. सो VAB और VBA विल बी वर्क डन टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B will be potential difference. ठीक है. Now the sign will change. If it is VBA, then it has to be W upon Q, but from this direction to this direction. So then वो आप उसको यहाँ पे, इसको एक्चुअली डिराइव भी कर सकते हैं VA. ये आपको पता है WA by Q था, ये आपको पता है WB by Q था, दोनों में 1 by Q कॉमन है, तो WA by WB वही सेम चीज है, W by Q ही आएगा वो. ठीक है. सो आपके रिलेटिव या यू गॉट इट. सो टेक्स्ट बुक के हिसाब से, let's come back to boards. So what is potential difference? Potential difference between any 2 points. Potential difference between any 2 points is work done to bring a charge Q from point A to point B. So अगर 2 पॉइंट्स हैं A और B, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कोई अगर चार्ज Q है जो पॉइंट A पे है, उसको अगर पॉइंट B पे लेके जाना है तो कितना वर्क डन किया W, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VAB इक्वल टू W by Q. ठीक है. सो नाउ इट इज 9:02 एंड इट इज आस्किंग मी अगेन इफ यू वांट टू एक्सटेंड. सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस. तो अभी तक हम 2 चीजें पढ़ चुके हैं, ध्यान से समझिए. इस चैप्टर में आप 2 चीजें पढ़ चुके हैं अभी तक. फर्स्ट वाज करंट I, जिसकी यूनिट है एम्पियर.
दूसरा इज पोटेंशियल डिफरेंस V, जिसकी यूनिट है वोल्ट्स। ठीक है, आप दो चीजें पढ़ चुके हैं। अब इससे कनेक्टेड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? ओम्स लॉ। और उधर से कॉन्सेप्ट आएगा रेजिस्टेंस। Sir, if we move charge in circular motion, does this affect potential difference or it's similar to displacement? फाउंडेशन वालों को पढ़ाने में तकलीफ हो जाएगी यार, तुम लोग 10th लेवल तक के क्वेश्चन पूछो। Let me guess. Someone can help me. I don't know. Even Pranav, I think you can yourself reply. But if we move charge in a circular motion, does this affect potential difference and it's similar to the displacement? But I asked this thing to Liren sir, but I strongly feel because there is no work done, na? We also know this in circular motion, work done is zero. Basic funda hai to. Because work is, what is work? Force into displacement. Barabar? W is equal to Fs, and because there is no displacement, there is no work done. इसलिए हम बोलते हैं ना, yeah. So इसलिए हम बोलते हैं ना कि work done zero है. So I don't know. You have to ask Liren sir. But as far as my logic goes, if something is moving around, then we say, yeah, as far as I understand. ठीक है, so now we are done with these two topics, what is current and what is potential difference. So आपको ये current, potential difference and वो जो important था conventional direction of current, ये तीन चीजों की definitions आनी चाहिए as per your board exams. ये पूछ सकते हैं. Initially the charge comes on the same point. Okay, आप लोग का अपना कुछ internal debate चालू हो गया है. India wants to know. So continue with that. So कहाँ पे था मैं? Yes. So as per your board exams, the three things important are: what is conventional direction of electric current, what is definition of current is unit, its denotation, denote कैसे करते हैं, what is potential difference, its unit, and इसको what is it, इसका device क्या होता है, cell और a battery. अब यहाँ के बाद आता है Ohm's law. Ohm's law से फिर connected आएगा resistance. So what is resistance and how it is this. और बस इसी के आगे फिर resistivity, rho, और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस समझने के बाद रेजिस्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल, खत्म ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. इनिशियली द चार्ज कम्स टू, कल का पेपर ऐप में क्यों नहीं दे सकते सर? ऐप में दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते, बट ऐप में चांसेस ये हैं कि आपको कुछ डिफिकल्टी फेस होगी, पेपर हैंग हो जाएगा, सबमिट नहीं करेगा, कुछ ना कुछ लफड़ा करेगा. इसलिए गूगल क्रोम पे इसलिए देते हैं कि देयर इज नो एम्बिग्यूटी. यस, तो सुजय सर ने स्पेसिफिकली बोला था कि ऐप में ही मत लो. Now it's already 9:06. I have come late, so I think yeah we shouldn't extend now. So we will finish in 3 minutes 20 seconds. So let's try. जब तक ओम्स लॉ, आई थिंक आप लोग स्मार्ट हैं, समझ जाएंगे फटाफट. तो मिस्टर ओम्स थे, ओम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उनको पता चला कि अगर मैं किसी, हाँ, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट आता है. तो यू नो इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये बल्ब है, एक स्विच है और बैटरी है. इसको बोलते हैं कंडक्टिंग वायर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, इसको बोलते हैं स्विच. बीच में आप रियोस्टेट भी लगा सकते हो, विच कंट्रोल्स द करंट. ये सब आने वाला है. सो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल सर्किट में V और I का ग्राफ बनाया. ओके, नाउ द टू मोर कनेक्टेड पॉइंट्स. पहले मैं ओम्स लॉ बता देता हूँ फटाक से, फिर आपको कनेक्टेड पॉइंट्स बताऊंगा. तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक ही बैटरी लगाई, सिर्फ एक ही बैटरी लगाई. एक बैटरी लगाई सपोज 2 वोल्ट की, तो उनको करंट मिला कुछ 0.5 वोल्ट. फिर उन्होंने एक और बैटरी लगा दी, तो वो हो गया 4 वोल्ट, तो उनको 1 एम्पियर मिल गया करंट. फिर उन्होंने तीसरी भी बैटरी लगा दी, तो इनका ये 6 वोल्ट हो गया, तो 1.5 एम्पियर हो गया. उन्होंने फिर चौथी बैटरी लगा दी एक और, तो इनका ये 8 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पे 2 एम्पियर हो गया. तो देन ही रियलाइज्ड के एज आई एम इंक्रीजिंग द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, the current is also increasing. So this is the Ohm's law. When all the physical parameters such as temperature are kept constant, if in an electrical circuit the potential difference always directly proportional to the current in the circuit. आप जितना potential difference बढ़ाएंगे उतना electric current बढ़ेगा, आप जितना potential difference कम करेंगे उतना electric current बढ़े कम होगा.
आप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। तो ये उनको समझ में आया। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो v इज इक्वल टू आई आर, एक r करके कांस्टेंट आ गया। नाउ व्हाट इज दिस कांस्टेंट? रेजिस्टेंस। हाउ इट इज अ कांस्टेंट? बिकॉज r इज इक्वल टू v by i. So you take any case and you divide v by i, it will always be constant. 4 by 1 is 4. Now you divide 8 by 2, it's 4. Divide 6 by 1.5, it's 4. You divide 2 by 0.5 is 4. So always it is a constant. तो उन्होंने बोला yes ना, of course yes, yes, yes प्रणव, of course yes, वही तो है ना पोटेंशियल डिफरेंस। आपने यहाँ पे से पहले 2 वोल्ट लगाया था, पर 2 बैटरी लगा, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 वोल्ट बैटरी लगाई तो उसका 2 वोल्ट है, पर यहीं पे अगर मैंने एक और बैटरी लगा दी तो 2 + 2 4 वोल्ट हो जाएगा ना। या आपने 8th क्लास में पढ़ा है, आपको याद है वो सेल वाले क्वेश्चंस करवाए थे, अरेंज द सेल इन सच अ फॉर्मेट दैट यू गेट ये रिजल्ट, ये रिजल्ट, वो रिजल्ट। यस यस यस, उसमें था फिर एक सेल उल्टा लगा देते थे हम लोग, तो वो नहीं होगा, उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। या ठीक है, इट्स 30 seconds नाउ, शुड आई एक्सटेंड और लीव? 4 gets added, no one is replying, they want to change. ठीक है चलो, we'll end here. So I will explain you, मैं जो लास्ट टाइम बताऊंगा प्लीज नोट रख के रखना। शुड आई एक्सटेंड? एज यू विश, वन इज सेइंग एक्सटेंड। चलो एक्सटेंड। सो ठीक है, मुझे लेट मी कंप्लीट दिस। सो चार्ज गेट्स एक्यूमुलेटेड ना, इट गेट्स स्टोर्ड एक तरीके से। सो सी फर्स्ट थिंग इज यू शुड नो दिस। वो मैं 6th 7th 8th वाला बता रहा हूँ, वो ऐसा रहता था। अगर ऐसे लगा दिया मतलब उसका पोटेंशियल डबल हो गया, पर वही उसको डायरेक्शन उल्टी कर दी, ये नहीं इधर नहीं है इधर है, तो फिर नहीं करंट फ्लो करेगा, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ सेम, वो सर्किट नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन था ना आपको, व्हाई डज द बल्ब नॉट ग्लोइंग? तो देयर आर 4 आंसर्स। या तो आपने बैटरी गलत लगाई है, या तो बैटरी डिस्चार्ज है, या कंडक्टिंग वायर खराब है, या तो बल्ब फ्यूज है। वैसे अजीब सा एक बकवास सा क्वेश्चन था ना 8th क्लास में, 8 CBSE में, वो ये सब यही था, वो समझाने के लिए। ठीक है, सो जो R आया उसकी वैल्यू आई V by I। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स फॉर अ गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट, कुछ भी इलेक्ट्रिकल सर्किट कुछ भी हो, बल्ब लगाए, फैन लगाए, ट्यूब लगी है, कुछ भी हो इसमें, एक बार आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया ना, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप कुछ भी कर लो, इसका रेजिस्टेंस यही रहेगा। ऑफ कोर्स इफ ऑल द पैरामीटर स्पेशली द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, हमको पता है टेम्परेचर के साथ ये अफेक्ट करता है, तो इफ द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी बढ़ा लो, ये रेजिस्टेंस यही रहेगा। तो अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इसको रेजिस्टेंस यही रखना है, अगर तो उसको यहाँ करंट बढ़ाना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन क्या है दूसरा। तो यहां से फॉर्मूला बना V इज इक्वल टू आई आर। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, व्हाट इज ओम्स लॉ? सो दिस इज फॉर योर सब्जेक्ट। एंड व्हाट इज आर? रेजिस्टेंस। So hindrance in the flow of current. So definition of resistance is simple. Hindrance in the flow of current. कि जो भाई करंट में रुकावट पैदा करे, इसके लिए आपने देखा होगा डायग्राम भी कैसा है, ऐसा जो रुकावट पैदा करने वाला होता है वैसे ही रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट है ओम। आप OHM भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा उल्टी टोपी भी बना सकते हैं। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस इज R. So this is hindrance in the flow of current. Now there is much more kind of similarity between resistance and resistivity. So ये मैं भी आपको 2 मिनट में बताऊंगा। फर्स्ट लिए मैं जो एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ वो सुनिए। अब आपका वही 8th में था ये। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सीरीज एंड पैरेलल। नाउ यू नो सीरीज मींस इन, कोई भी एक सर्किट होता है उसका इन होता है और उसका आउट होता है। तो अगर वापस से ये दूसरे में इन और आउट हो जाए, इसको बोलते हैं सीरीज। तीसरे का इन, फिर से आउट, फिर से ये इन और ये आउट, ये तरीके का बनेगा तो इसको बोलते हैं सीरीज। इट्स इन सीरीज। पर यही चीज इन 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 आउट 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 हो जाए, मतलब सबका इन एक तरफ, सबका आउट एक तरफ, एंड देन यू कंबाइन देम।
So then this is called as parallel, like your parallel lines, one above the other. So this is parallel. Although आप ये सब शायद मेरे ख्याल से समझ चुके हैं, but just for your 10th level, I am like making you understand this. Now, what is important? What is of importance is current always. Current जो है, it always flows. पानी की तरह बहता है ये. It's a flowing water, flowing air, flowing river. Current बहता है. So it is always connected in series. अगर करंट को डिवाइस जो है जिसको आप उसका जान सकते हैं वो है एमीटर. ये भी आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में है. सो एमीटर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल एंड अ ए, and there is a plus and minus sign. So you have to remember this. The plus sign is always connected to the battery's plus sign, and the minus sign is always connected to the battery's minus sign, and it should be always connected in series with the circuit. आपको जिस सर्किट का करंट देखना है उसमें सीरीज में होना चाहिए एमीटर. Similarly, there is a device. Similarly, there is a device which measures potential difference. So उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर. वोल्टमीटर और वोल्टामीटर. And it is always, इसको भी प्लस माइनस के साथ याद रखना चाहिए. And it is always connected in parallel. ये पैरेलल में लगाया जाता है. क्यों? Because potential difference, it's going to measure potential difference. अब मेरे को देखिए अभी. Potential difference means at two different points. सी करंट मतलब इट इज फ्लोइंग थ्रू इट, तो आप उसके बीच में लगाते हैं. ये सर्किट है, ये सर्किट है. सर्किट ये देखो, यहाँ पे देखो, चलो ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा बल्ब है, और ये मेरी बैटरी है. तो इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं इसके बीच में एक एमीटर लगाऊंगा, क्योंकि करंट इसके सेंटर से फ्लो करते हुए निकल के आएगा. समझ में आ रहा है? ये सीरीज में है सब कुछ, इन आउट, इसका इन आउट, इस बल्ब का इन आउट, और इस एमीटर का इन आउट, और प्लस की तरफ प्लस, माइनस की तरफ माइनस. ये सीरीज है, ये सीरीज. ठीक है. नाउ यही सर्किट ये ऐसा लगा हुआ है. अब मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है. तो किसका पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है? अगर आपको इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है तो आप यहाँ पे वोल्टामीटर लगाएंगे. प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा. तो ये आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, वही ये पॉइंट और ये पॉइंट भी वही है, इनके बीच में कुछ भी नहीं है. सिमिलरली ये यहां से लेके यहां तक कुछ भी नहीं है. सो इट्स एज गुड एज ये वहीं पे कनेक्टेड है. कैन यू बिलीव दिस? कैन यू इमेजिन दिस? ये डायरेक्टली ऐसे ही कनेक्टेड है, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं. सिमिलरली ये भी डायरेक्टली ऐसे ही कनेक्टेड है इसी पॉइंट पे, बिकॉज इनके बीच में कुछ है ही नहीं दूसरा. तो ये इन दोनों का ही पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है. पर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब, सो देन योर वोल्टामीटर विल बी हियर. तो इस बल्ब के दो पॉइंट्स ये हैं, इन दो पॉइंट्स को आप यहां कनेक्ट कर दीजिए, तो ये इसके अक्रॉस होगा. सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज अक्रॉस. दैट इज द मेन पॉइंट. इट इज ऑलवेज अक्रॉस. आप उन दोनों पॉइंट्स के बीच में उसको चेक करते हैं. अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है मुझे दो पॉइंट्स के बीच में. अक्रॉस दिस टू पॉइंट्स व्हाट इज द डिफरेंस? अगर मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखना है तो मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच में लगाना पड़ेगा वोल्टमीटर. एंड दिस इज पैरेलल, दिस इज नॉट सीरीज. सीरीज होता तो यहां लगता. दिस इज पैरेलल. ठीक है. तो ये ध्यान रखना, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. एंड सीरीज में इन आउट, इन आउट, इन आउट. पैरेलल मींस इन इन इन, आउट आउट आउट. ये दो जो चीजें थी ये आपको ध्यान रहनी चाहिए, याद होनी चाहिए. So are you all with me? Please type series and parallel. बहुत देर से कोई कुछ लिख नहीं रहा है, खाने चले गए क्या सब? Are you all taking dinner? Please type series and parallel. Ascent भी shortcut. Series and parallel. Okay. ठीक है, तीन ही लोग का रिप्लाई है. बाकी प्रणव गॉन. प्रणव इज हियर. Series, parallel, Ninad, Aditya, Raj. ठीक है, डन. So now we'll come back to our analogy of क्या पढ़ रहे थे हम लोग? Ohm's law. Sorry.
So Ohm's law means electrical circuit. ठीक है, इन भाई साहब ने क्या किया, एक एमीटर लगाया, एक बैटरी लगाई, ऑफ कोर्स स्विच तो लगाया ही है, और एक पर सपोज देखो ये पॉइंट और रिसीव के अक्रॉस बैटरी लगाने का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि ये सेम ही है। अगर आप इधर 2 वोल्ट लगाओगे तो ये 2 वोल्ट ही दिखाएगा, आप इधर 2 बैटरी लगाओगे तो ये 4 ही दिखाएगा, आप इधर 3 बैटरी लगाओगे तो 6 ही दिखाएगा। इसके अक्रॉस तो चेक करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, चेक करते हैं इसके अक्रॉस, बल्ब के अक्रॉस। और ये रेजिस्टर मैं एक्चुअली दिखा रहा हूँ, ये रेजिस्टर भी नहीं दिखाना है आपको, डायरेक्टली यही दिखाना है, टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली यही दिया हुआ है। सिंपल बल्ब, एमीटर, 1 बैटरी and 1 voltmeter. ये ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट है। When all the physical parameters like temperature are kept constant within an electrical circuit, if the potential difference there it has been observed that the potential difference is directly proportional to the current flowing in the circuit. ठीक है, ये ध्यान रखना। Physical property of substance to create resistance. I didn't get it. Physical property of substance to create resistance. I didn't get it, Pranav. What exactly you mean? Oh yeah, I've not come to it. I've not come to it. Resistivity is a big topic. हम लोग नेक्स्ट टाइम ही लेंगे, जल्दी जल्दी में नहीं होगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंस नाउ। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? देखिए ये वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, पर इसके अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी वायर में, और ये रेजिस्टेंस जो होगी जो उसको करंट फ्लो को परेशान कर रही है। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस काफी सिमिलर है, इसलिए मैं एकदम प्रेम से बता रहा हूं आपको। अब एक दूसरी चीज हो गई कि ये पूरा सर्किट कितनी रेजिस्टेंस दे रहा है। इस सर्किट की एक रेजिस्टेंस होगी कि भाई हम कुछ भी 0.1 ओम 0.2 ओम कुछ तो दे रहा होगा, हम उसको जीरो मान के चलते हैं क्योंकि वायर में हम रेजिस्टेंस नहीं कंसीडर करते, पर ऐसा होता नहीं आइडियलिस्टिकली। दिस इज जस्ट एन आइडियल कंडीशन। ऑन प्रैक्टिकल लेवल वी नो दैट एवरी वायर गिव्स यू रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो देता है। वो जो रेजिस्टेंस है ओवरऑल वो कंबाइन है। अभी वो रेजिस्टेंस को हमको कभी कभी डिजायर्ड वैल्यू लगती है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टर। पहले आप इन चीजों में डिफरेंस समझिए। there is something called as resistance, then there is something called as resistor. Now resistor is a electronic thing which is you get in the market, वैसे स्ट्रिप की तरह होता है, चॉकलेट चॉकलेट राउंड की, राउंड 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 3-4 डिफरेंट कलर कोड्स के साथ होता है, पिन रहती है उसको। आपने कभी वो इलेक्ट्रिकल बोर्ड सर्किट देखा होगा तो देखा होगा, इट लुक्स लाइक ऐसा, ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, ऐसे पतले पतले गोल गोल, फिर थोड़ा छोटे छोटे गोल, फिर थोड़ा बड़ा गोल, फिर ऐसे थोड़ा छोटे छोटे गोल, ऐसे फिर एक दो बड़ा गोल, फिर यहाँ से एक पतली वायर और एक यहाँ से एक पतली वायर। किसी ने देखा है? यस। सो दिस थिंग इट इज कलर कोडेड। इसका एक तरीका रहता है, 11th-12th में शायद आपने पढ़ लिया होगा, वो कौन सा कलर होता है, कितना इंटू 10⁻⁴ ये मैं भूल गया वो फंडा, नॉट येट। ओके, उसका कलर कोडिंग रीड करने का एक तरीका होता है, तो येलो रेड ग्रीन कौन सा है उसका नंबरिंग रहती है, और फिर इंटू 10⁻⁴ क्या, कितने ओम्स का वो रेजिस्टेंस रहता है। तो ये जो रजिस्टर है, मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूं इसका मतलब क्या है। आपने घर में देखा है अपना इलेक्ट्रिक फैन, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, जब मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया था ये टॉपिक। इलेक्ट्रिक फैन देखा है आपने? आपका फैन रहता है, ठीक है, ये आपका सपोज फैन को जा रहा है, ये फैन के 3 ब्लेड है ये, तो एक अगर पार्ट है तो दूसरा पार्ट भी होगा ना। ये दूसरा पार्ट क्या करता है, ये वेरिएबल होता है, ये कभी इधर कनेक्ट हो सकता है, 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 कभी इधर कनेक्ट हो सकता है। तो आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0, फिर 1, फिर 2, 3, फिर 4, फिर 5, कि इसकी स्पीड कैसे बढ़ती है कम होती है। शायद मैंने नंबरिंग उल्टा कर दिया है। तो देखो, अब अगर मैं सिर्फ इसका, सॉरी मैंने नंबरिंग उल्टी कर दी है, दिस वुड बी 1,
this would be 2, this would be 3, this would be 4, this would be 5, and this would be 0. So अगर कोई जो भी है नंबरिंग देख लेना, अगर ये सर्किट यहां कनेक्ट होगा तो ये पूरा सर्किट कैसा बना, यहां से लेके पांचों के पांचों रेजिस्टर्स को मिलेंगे. सो आपको पता है सपोज सब 10 ओम के हैं, सपोज सब 10 ओम के हैं, तो ये सपोज इसको 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है. अब इसमें 50 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है. सो हाउ मच इज द करंट फ्लोइंग? I is equal to V by R. V12 चलो 100 वोल्ट कर देते हैं इसको, 100 वोल्ट, तो 2 एम्पियर का करंट बह रहा है. आपको पता है बैटरी कैसे, फैन वो आपने मोटर लगाई है, वो एक बचपन में वो किए होंगे, वो विंड मिल बनाने के लिए वो बैटरी आती है, उसमें छोटा पेंसिल सेल लगाएंगे तो फैन ऐसे ऐसे घूमता है, 2 पेंसिल लगाएंगे तो फैन जोर घूमने लगेगा. तो करंट के ऊपर डिपेंड करता है. आपने अपने मोबाइल चार्जर देखे हैं, मोबाइल चार्जर घर पे अपने मोबाइल चार्जर देखिए, उसके पीछे 220 वोल्ट इज ऑलवेज द सेम. व्हाट डिफर्स इज 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर. सो चार्ज, इट्स अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. करंट जो है वो डिसाइड करता है कितना तेज घूमेगा फैन, मोटर कितना तेज घूमेगी. पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड नहीं करता. सो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम. व्हाट हैपेंस इज, आप हर बार जो रेगुलेटर को घुमाते हो ना 0 1 2 3 4, आप उसकी रेजिस्टेंस घुमाते हो. व्हेन यू ब्रिंग इट टू द 5, तो वहां पे वो सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस होती है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस मिल रहा होता है उसको. तो मतलब मैंने जो पहला नंबरिंग किया था वो सही था, 0 1 2 3 4 5, ये दिस इज 5, ये 5 है, सही है ये, और ये 1 है. पहला वाला नंबरिंग सही था. व्हेन यू कीप दिस स्विच एट हियर, इसको पांचों के पांचों रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, पर जब आप नंबर 2 पे लाते हो तो ये इसको उड़ा देता है, क्लिक कर रहा है. लेट मी ड्रॉ इट नाइसली अगेन, लेट मी ड्रॉ इट नाइसली अगेन. लेट्स से मैं उसको सर्कल नहीं करता हूं, ठीक है. ये एक फिक्स्ड एंड है मेरा जो फैन को लगा हुआ है, ये मेरा फैन है, और दूसरा एंड है मेरा वेरिएबल. सो नाउ आई कैन टच इट हियर, समटाइम हियर, देयर आर जंक्शंस, ठीक है. सो दीज आर द जंक्शंस. सो नाउ इमेजिन इफ आई टच this end here, so it will go through all the 10 10 10 10 10 50 ohms मिलेंगे इसको, सबसे कम करंट जा रहा होगा. सो फैन विल बी लाइक वाइंग वाइंग वाइंग. समझ में आया? पर यही चीज रेगुलेटर में 1 पे करता हूं. सो दिस इज कनेक्टेड हियर, एक उड़ गया, एक 10 उड़ गया, सिर्फ 40 बचा, थोड़ा तो झुक 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 चलने लगेगा वो. सिमिलरली अब मैं फैन को इस पे कनेक्ट किया तो 2 उड़ गए, ये भी उड़ गया, अब सिर्फ 30 बचा, तो थोड़ा और झुक 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 चलेगा. अब मैं इसको इस पे यहां पे लेके गया, 4 पे 3 पे जो भी है वो, तो ये भी उड़ गया, अब सिर्फ 20 ओम्स बचा, तो अब मेरा फैन थोड़ा झुक 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 चलेगा. और अब लास्ट में मैं सिर्फ इस पे लेके आ गया इसको, तो ये भी उड़ गया, सिर्फ लास्ट का 10 ओम बचा. तो अब तो मेरा फैन जूम 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 जूम, क्यों? क्योंकि करंट ज्यादा हो रहा है. सपोज V was 100 कांस्टेंट, ठीक है. Let's take it with the example. V was 100. So when the switch was connected here in this position, it was a resistance of 50. So what was the current flowing? I is equal to V by R. 100 by 50 is 2 ampere. So first case mein 2 ampere. When the switch was connected to this point, that means only 4 resistors. So V by R 100 by 40. How much it will be? 10 by 4. Bolo jaldi. 10 by 4. 5 by 2, 2.5, 2.5 एम्पियर करंट बढ़ गया. नाउ I3 when the point fan is kept here, मतलब सिर्फ 30, 10 by 3, तो करंट कितना हो गया? 3.33 एम्पियर. हर बार करंट बढ़ते जा रहा है. लास्ट रजिस्टर भी निकाल देती है. लास्ट रजिस्टर निकाल दोगे तो जीरो रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना बेटा. डायरेक्ट प्लस एंड माइनस, आप डायरेक्ट प्लस एंड माइनस कर दोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना. देयर हैज टू बी सम रेजिस्टेंस इन बिटवीन. या आइडियली द रेजिस्टेंस बिटवीन द वायर विल बी प्रेजेंट, बट हमारे 220 वोल्ट्स के उसके सामने वो रेजिस्टेंस बहुत कम है ना, सो इट विल बी एज गुड एज शॉर्ट सर्किट. इसलिए घर में आपने आग लगाई होगी ना कभी, वो दोनों वायर शॉर्ट किए क्या, चटाक करके स्पार्क निकलता है, सीवी गिर जाती है घर की. या इट्स वेरी लो, सीवी गिर जाती है घर की, स्पार्क आ जाता है. दैट इज व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, because you directly touch plus and minus na, so we cannot touch directly plus and minus, they will immediately attract, spark ho jayega. That is what is lightning. What is spark? वो spark is the shortest form of lightning.
जीरो पे मतलब आप क्या मीन कर रहे हैं, यहाँ पे या यहाँ? What Raj was asking is this, अगर मैं डायरेक्टली इस फैन को उठा के यहाँ लगा दूं तो क्या होगा? यहाँ लगा दोगे उठा के तो शॉर्ट सर्किट हो गया ना, क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। डायरेक्टली दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे फुल। जीरो स्पीड मीन्स यहाँ, जीरो स्पीड मीन्स आपने इतना ज्यादा रेजिस्टेंस दे दिया कि करंट ही नहीं फ्लो कर पा रहा उसमें से, या फिर उसको हमने ब्रेक करके रखा हुआ है, ये वायर को मैंने ब्रेक कर दिया है हवा में, तो सर्किट पूरा ही नहीं हो रहा है। क्लिक कर रहा है क्या? I'll show you this. I'll show you this. Great. What do you mean by zero is this? सर्किट ही ब्रेक हो गया है, ये है। अब मैं इसको इधर कनेक्ट कर देता हूं। इज द सर्किट कंप्लीट? इज द सर्किट कंप्लीट प्रणव? यस, बिकॉज द सर्किट देयर इज अ गैप हियर, इसलिए जीरो पे लाके रखा तो सर्किट ही नहीं कंप्लीट हो रहा है ना। It could be any of those things, but I believe it strongly circuit is complete because resistance very high से problem क्या हो जाता है ना, आपने ये भी देखा होगा, as soon as now we are left with 30 seconds, let me extend this again. So आपने ये भी देखा होगा, जहां पे भी रेजिस्टेंस होती है वहां पे हीट जनरेट हो जाती है। दिस इज योर सेकेंड लॉ जो आप आगे पढ़ने वाले, व्हाट इज कॉल्ड जूल्स लॉ, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये आप आगे पढ़ने वाले थोड़ी देर बाद। जहां पे भी रेजिस्टेंस होगी वहां पे हीट जनरेट होगी, लॉस ऑफ एनर्जी, यस जूल्स लॉ। जूल्स ने यही पता किया कितनी लॉस होगी एनर्जी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जितना करंट फ्लो कर रहा है, जितनी उसमें रेजिस्टेंस है, जितने टाइम के लिए, टी इज टाइम। आपने फील किया होगा, मोबाइल का चार्जर थोड़ी देर लगा के रखो नो प्रॉब्लम, 1 घंटा लगा के रखो गर्म हो जाता है। आप फील करो, बल्ब ऑन करो नो प्रॉब्लम, 1 घंटे के बाद बल्ब को पकड़ने का ट्राई करो, हाथ जल जाएगा। आजकल तो फिर भी एलईडी बल्ब है, पुराने जो येलो बल्ब आते थे दे बिकम वेरी हॉट। आप फैन चलाओ, टच करो, कुछ नहीं होगा, 1 घंटे के बाद टच करो गर्म हो चुका होता है। मोबाइल चार्ज करो, स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता, मोबाइल चार्ज होते होते उधर गर्म हो जाता है। यस, so everything wherever there is a flow of current and there is resistance, heat gets generated. So I strongly believe this should be open circuit. Why? Because अगर आप इसको बहुत हाई सर्किट कर दोगे और बहुत टाइम तक स्विच ऑन रहेगा तो इतनी ज्यादा गर्मी पैदा कर देगा, there is chances of fire, घर में आग लग सकती है। इलेक्ट्रॉन आयरन इज एग्जाम्पल, नहीं 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 नहीं, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर, वेट फॉर सम टाइम। दिस इज सी जूल्स लॉ से कनेक्टेड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड चैप्टर में आप जा रहे हैं बेटा, यू आर एंटरिंग सेकंड चैप्टर। यस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, मैं आपको चलो बोल ही देता हूँ अभी। सो इन योर सेकंड चैप्टर विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देयर आर हीटिंग इफेक्ट्स। पहला तो है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें दो इफेक्ट है, पहला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मोस्टली द चैप्टर इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट, बट हीटिंग इफेक्ट को भी उन्होंने इसी चैप्टर के एंड में बताया और स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा समझाया। तो हीटिंग इफेक्ट का मेन 3 पॉइंट है। हीटिंग इफेक्ट के 3 एग्जाम्पल है। पहला है फिलामेंट बल्ब, जो आजकल बंद हो गया है, पीला वाला बल्ब, वो जिसमें फ्यूज वायर होता था, ऐसा येलो कलर का ग्लास का ये रहता था, अंदर एक छोटा सा थ्रेड रहता था और ऐसा बल्ब होता था और नीचे होल्डर रहता था। फिर ये पुराना पीला वाला बल्ब, यस। सो दिस फिलामेंट बल्ब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जैसे इसमें से करंट ग्लो होता है, ये करंट पास करता है, ये वायर इतना हीट हो जाता है कि ग्लो करने लगता है। सो इट इज अ वायर विच इज हैविंग अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, very high melting point. This is known as tungsten. Tungsten is a alloy which is made of 2 things. आप लोग सर्च कर लेना क्या है, I don't forget now. Yeah, so tungsten is a wire which is combination. It's an alloy of which is having a very high melting point, and because of this high melting point, and plus this is called as incandescent bulb. It has a very unique property of converting this electrical energy into light energy. वो उसको लाइट में ग्लो करवा देता है, और इसके अंदर ये नोबल गैसेस भी रहती है, ताकि ये ऑक्सीडेशन की वजह से वायर जल ना जाए जल्दी। इसके लिए इसके अंदर कुछ गैसेस भी रहती हैं, ऐसी नोबल गैसेस, आर्गन और समथिंग लाइक दैट। यस, आर्गन गैस, क्योंकि इसमें नोबल गैसेस रहती हैं ताकि ये वायर ऑक्सीडाइज ना हो जाए जल के। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट इज जो आपने भी बोला, हीटर, नॉट जस्ट हीटर, ड्रायर, हेयर ड्रायर, देन योर टोस्टर, देन इलेक्ट्रिक ओवन, ये टाइप की चीजें। ये सारी चीजें कौन सी है?
जो आपने देखा ये कैसे काम करते हैं? कॉइल रहती है, एक पानी का वाटर हीटर देखा है, एक कॉइल रहती है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ये कॉइल गर्म होती है। तो इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है, ये जनरली बना होता है किससे? निकल एंड क्रोमियम से। इसका नाम क्या होता है? टंगस्टन वायर, एंड दिस इज कॉल्ड एज निक्रोम। निक्रोम निक्रोम वायर, ये निक्रोम वायर के बने होते हैं मोस्टली। सो दिस निक्रोम वायर आल्सो इज एन अलॉय। और इसका फिर इसकी क्या प्रॉपर्टी है? दिस इज आल्सो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्ट नहीं होती, गर्म। एंड जैसे ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती थी, बल्ब में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट प्लस हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता था। निक्रोम वायर क्या करता है? ये टंगस्टन है, टंगस्टन। निक्रोम वायर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोस्टली, इसमें लाइट एंड हीट है ना, इसमें मोस्टली हीट प्लस थोड़ा बहुत लाइट, वो रेड कलर का हो जाता है, आपने देखा होगा, रेड हॉट हो जाता है एकदम। तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये इसको गर्म कर देता है। देन द थर्ड ऑप्शन जो मैं आपको बोल रहा था, दैट इज फ्यूज। यस, ये आपने एट्थ में पढ़ा है थोड़ा सा, आपको शायद भूल गए, आप लोग एट सीबीएसई में पढ़ा है आप लोगों ने। फ्यूज वायर क्या होता है? नाउ दिस इज अगेन, ये आपका अभी जो आजकल सीवी है, जिसको एमसीबी बोलते हैं आप लोग, सीवी नहीं होता है वो, एमसीबी होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और हम लोग शॉर्ट में उसको सीवी सीवी बोलते रहते हैं। इस्त्री, ब्रेक्स, यस, निक्रोम क्रोमियम। सो फ्यूज वायर इज अगेन एन अलॉय। इसकी प्रॉपर्टी एकदम उल्टी है, इसकी है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इट इज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि एक वायर के अंदर कितनी रेजिस्टेंस होती है वो फिक्स है, ठीक है? तो उसके ज्यादा अगर उससे हीट फ्लो करेगी तो वो मेल्ट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को यूज करके वो लोग फ्यूज वायर बनाते हैं। फ्यूज वायर क्यों बनाते हैं वो लोग? ताकि आपको एक डिजायर्ड प्रॉपर्टी से ज्यादा उसमें करंट ना जाए, ठीक है? इसके लिए फ्यूज वायर है। तो ये जब वहां पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो प्रणव, यू आर मिक्सिंग टू थिंग्स, टू सेव appliances, to save us from the shock, to save us from the fire, to save us from the electrical shock, to save us from the fire, to save us from the shock, to save us from to save the electrical appliance खराब हो जाएगा। यस, आई थिंक आप लोग थोड़े ज्यादा ज्ञानी हैं तो इसलिए तकलीफ हो रही है। सब कुछ एक साथ पूछ लेते हैं। ओके, आई एम बैक। वेयर वाज आई? रेजिस्टेंस, वी बाई आई, रेजिस्टिविटी नहीं, मैं आपको कुछ और बता रहा था। या व्हाट वाज रेजिस्टर? आप लोग, अरे रुक जाओ यार, तुम लोग इतने क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, रुक जाओ। शॉर्ट सर्किट नेक्स्ट चैप्टर में, लेट मी गो। थक गया मैं, अब मैं थक गया, बंद करते हैं। 9:30। अरे आप लोग अच्छे बच्चे हो, पढ़ाने में मजा आ रहा है, बट थक गया मैं। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा था, ओम्स लॉ की डेफिनेशन याद कर लो। ओम्स लॉ की डेफिनेशन याद कर लो, वो इंपॉर्टेंट है। उसका एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस आता नहीं है। यस, उसमें फिर रेजिस्टेंस क्या होता है वो चल रहा था, और रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर, हाँ ये बता रहा था। रजिस्टर, ये समझाने के लिए मैंने पंखा समझाया था आपको। सो अब मैं आपको बता रहा हूँ रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या अंतर है। रेजिस्टेंस इज अ hindrance in the flow of current. Now to get that desired hindrance we need resistors, जैसे हम लोगों ने फैन के स्विच बोर्ड में लगाया। अब मैं, ये वायर तो मेरा फिक्स है, ये वायर भी फिक्स है, तो मैं इसका करंट कैसे चेंज करूं? तो मैं एक्सटर्नली रेजिस्टर्स लगाऊंगा। तो ये जो चीज मैंने लगाई है इसको बोलते हैं रेजिस्टर। नाउ दिस विल गिव मी अ डिजायर्ड आउटपुट। क्या है मेरा डिजायर्ड आउटपुट? मेरे करंट में हिंड्रेंस आनी चाहिए। यहां से 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है, पर यहां पहुंचते पहुंचते वो कितना बन जाएगा? ऑफकोर्स सीरीज में तो सेम ही होता है, हमें पता है वो बात, बट एग्जांपल ये है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस मैंने दिया है, तो अगर मुझे यहाँ पे चाहिए 10 एम्पियर ना जाए ये बहुत, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 5 एम्पियर चाहिए, तो मैं और 10 रजिस्टर लगा दूंगा यहाँ बीच में, तो फिर 5 ही एम्पियर जाएगा। तो ये डिजायर्ड करंट हम चेंज कर सके, इसी के लिए तो हमें रजिस्टर लगता है। सो देयर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर। रजिस्टर इज द रजिस्टर इज अ मैन मेड थिंग विच वी गेट, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे हमें मिलता है, ये बाहर मिलता है, हम खरीद सकते हैं। टू गेट अ डिजायर्ड आउटपुट ऑफ द करंट, हमें क्या करंट चाहिए उसके हिसाब से हम उसको
सर एटम के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट नहीं करते वायर क्या? आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू टाटा बाय मैं थक गया आप लोग के प्रश्न। ठीक है, so now I'll meet you on next Saturday. So before I go, let's take down some homework. So I want all of you to give me answers of these 3-4 questions first. What is charge? Not what is charge. Explain charge, whatever you know. Second, what is current? Explain whatever you know. Its direct SI unit, its denotation, its unit, its जो कुछ है आपको पता है सब लिख दीजिए इसमें, ठीक है? What is definition of current? ऊपर के मैसेज देखो सर. Nickel chromium is 3 to have appliances understood sir. Short circuit charger resistivity okay. सर का पोटेंशियल इतना ही है. बराबर है. थक गया यार 1 घंटे से बुलवा रहे सालों. तुम लोग तो बैठे हुए मस्त टाइप कर रहे हो अपना. सर का पोटेंशियल तो इतना ही है. अच्छा नहीं समझ रहा है. सर एटम के न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर लेते वायर. ऊपर के मैसेज देखो. राज खेड़ेकर मजा आ रहा है इसको. ठीक है, डू अटेंड माय. अरे नोट डाउन द होमवर्क. थर्ड थिंग इज व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस. उसके बारे में जो कुछ आपको पता है एक्सप्लेन. एंड फोर्थ थिंग इज ओम्स लॉ. इसका एक्सपेरिमेंट के साथ समझाइए. इसका एक्सपेरिमेंट, इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला. एंड लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज रेजिस्टेंस हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट. ये बोर्ड देखो. अभी आप समझो मेरी बात. आप लोग की हमारी ये जो क्लास है ये किसके लिए है? 10th सीबीएसई के बोर्ड के लिए. ठीक है ना. ज्ञान की क्लास किसकी है? लिरेन सर की है. तो ज्ञान कृपया लिरेन सर की क्लास में ले. हमारे पास क्या मिलेगा? डीबीएस के क्या मिलेगा? 10th के मार्क्स. ठीक है. ओके सर. मतलब वी विल ट्राई टू एंटरटेन बट यू नो वी शुड नॉट गो सो मच डीप इनटू इट के अपना टॉपिक ही रह जाए. ओके, नाइस टॉकिंग टू यू ऑल सर. आपसे ज्ञान लेने में मजा आता है. बेटा क्लास नहीं हो रही है, नहीं तो ज्ञान के साथ साथ और भी बहुत कुछ मिलता है. या ओके. थैंक यू वेरी मच. आई एम डिलाइटेड. आप लोगों ने अच्छा मुझे पकाया. मैं भी खुश हुआ आपकी मीठी मीठी बातें सुन के. धन्यवाद. मुझे भी मजा आता है. अच्छे बच्चों को पढ़ाने में सबको मजा आता है. दैट्स अ फैक्ट. इवन यू नो जस्ट टू ऑन अ लाइटर नोट, we have given your batch first to Rahul sir, then again to Mukesh sir, then again to I gave it to Sumit sir, then finally आशीष सर बोले नहीं नहीं अच्छे बच्चे मैं पढ़ाऊंगा. so वो है. आप लोग अच्छे बच्चे हैं. प्रणव स्पेशली खतरनाक दिमाग चलता है इसका. एंड ऑल आवर प्रीवियस बैच इज ऑसम. अरे क्या नाम है? संचित नहीं दिख रहा मुझे. संचित, आर्यन. वेर इज संचित? वेर इज आर्यन? एनी वेयर अबाउट्स? एवरीथिंग ओके? दे आर हियर ओनली बारामती और नागपुर. हाँ संचित, अर्नब. वो तो मैं भी पूछ रहा हूँ कहाँ है वो. आर्यन नहीं, सॉरी अर्नब, सॉरी. संचित हियर ओनली. एक भी चैट नहीं उसका तो. वेर इज संचित? हियर ओनली मीन्स इन बारामती. ओके. सो ये साला पिटेगा ये. आज खड़े कर तू बहुत बहुत खाएगा मेरे से, बता रहा हूँ. अरे सर वो रिकॉर्ड होने वाला है ये सब. क्लास में तुम लोग गालियां सुनवा रहे हो मेरे से. दे हैव नॉट ज्वाइंट. मतलब जनरली कोई क्लास अटेंड करते हैं कि मेरी नहीं की? करते लेकिन अभी नहीं दिख रहे. आपने पूछा तो मैंने चेक किया, नहीं दिखे. इससे पहले वाली क्लास में थे? हाँ आपके इसमें भी थे शुरुआत में. ओ अच्छा. आई ज्वाइन लेट. अच्छा अच्छा अच्छा. ओके ओके ओके. श्योर श्योर श्योर. सॉरी सॉरी सॉरी. ठीक है. गिव माय रिगार्ड्स एंड सॉरी. ऑलरेडी आई हैव पुट इट डाउन इन द ग्रुप. ठीक है चलो. क्लियर यहां तक?
यस सर। भूल गए, क्लास सुना, लगा के चले गए, हो सकता है। ठीक है यहाँ तक? व्हाट इज करंट, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज रेजिस्टेंस, यस। व्हाट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 भी एक है, व्हाट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये 4-6 क्वेश्चन करके दिखाना है आपको। कब तक? नेक्स्ट सैटरडे तक। और लो सर। साले भूख नहीं लग रही तुझे? 9:30 हो गए, खा के जाके खाना खाओ। चलेगा मुझे, ये देखिए ये लोग को मजा आ रहा है। ठीक है, चलो, हो गया खाना। अरे मुझे तो खाने दो। ठीक है, चलो, लेट्स हैव इट, लेट्स गो अहेड। ठीक है, सुनो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो आप, मैं आपको चार्जर की बात बता रहा था। हे भगवान, राज, हे भगवान, ये कैसा लड़का है यार। अरे हंसा मत, रिकॉर्ड हो रहा है सब, आशीष सब देखेंगे, बोलेंगे ये कौन सी क्लास चल रही है। ओह फक। रजत सर की क्लास में हो गया, क्यों इतना बोर पढ़ा रहे क्या वो? नालायको, बायो पढ़ो अच्छे से। अरे कल टेस्ट है तुम्हारा, मेरी क्लास में टाइम पास कर रहे हो? कल पीसीएमबी टेस्ट है, हैवी बनाया है। अच्छा। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अरे पढ़ाई करो जाके, कल टेस्ट है तुम्हारा 10 बज के। चलो 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 बाय, कल आपका अरे पीसीएमबी टेस्ट है। हाँ चलो चलो बाय। एंड हरी बोल, इट्स वेरी सीरियस, वी आर डूइंग इट वेरी स्ट्रिक्टली। मैं अभी बैठ के आया हूँ वहां पे 6 बजे तक, किरण सर के साथ पेपर बनाया मैंने, मतलब उसका ड्राफ्टिंग करवाया। पेपर तो सब टीचर्स ने दिया था। वी आर कंडक्टिंग वेरी स्ट्रिक्टली। 10 बजे चालू हो जाएगा आइडू फॉक्स पे, गूगल क्रोम में खोलना, ठीक है ना? गूगल क्रोम में खोलना, जस्ट लेट्स रिवाइज पीसीएमबी टेस्ट। गूगल क्रोम में खोलना फर्स्ट। हमेशा हर एक क्वेश्चन के बाद उसमें ऑप्शन आता है नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। सो बिकॉज यू कैन इधर, अच्छा ठीक है, तो पूरा बात बताया करना यार, मैंने इतना हंस दिया फालतू में। सर वो अपने आप शुरू हो जाएगा, नहीं मतलब। सुनो ना, मैं समझा रहा हूँ। पहला है गूगल क्रोम, हाँ ऑटोमेटिकली आप अभी करोगे तो अभी दिखेगा आपको, योर टेस्ट इज इतना आवर्स पेंडिंग। वो बराबर 10 बजे का टाइमर डाला हुआ उसने, 10 बजे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा वो। अभी भी आप एडोफॉक्स में लॉग इन करोगे तो आपको दिखेगा वो, हेलो आदित्य योर पीसीएमबी यूनिट। हम्म। एडोफॉक्स में या इम्पाल्टस में? एडोफॉक्स किधर है यार? इतना क्लियरली मैसेज डाल दिया उसके बाद ऐसा पूछ रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, एक सेकेंड। यू विल क्लियरली सी 11 hours 29 minutes something is remaining for your 10th CA फाउंडेशन टेस्ट पीसीएमबी मेगा टेस्ट टू स्टार्ट, ऐसा कुछ लिख के आएगा मैसेज। ठीक है, फर्स्ट आदित्य हियर आउट दिस पॉइंट्स। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू ओपन योर एडोफॉक्स इन गूगल क्रोम। सेकंड फर्स्ट, because there are 100 हाँ सर, questions. दिख रहा है, देखा मैंने। Yes, because there are कंप्यूटर पे। 100 questions, so there is an option of either you can leave them, लीव कर सकते हैं आप उनको, लेफ्ट। दूसरा है यू कैन जस्ट डाउटफुली डाल सकते हैं उनको, तो उसको बोलते हैं रिव्यू। मतलब आपने डाल तो दिया, सपोज मैंने ऑप्शन बी चूज कर लिया बट आई एम डाउटफुल, श्योर नहीं हूं मैं, सो आई कैन अगेन कम बैक एंड रिव्यू दिस क्वेश्चन। एंड द थर्ड ऑप्शन इज सेव एंड नेक्स्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन आप श्योर हैं, विच क्वेश्चन यू आर श्योर, यू हैव टू प्रेस दिस थिंग, सेव एंड नेक्स्ट। अगर आपने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया, इट डजंट रिकॉर्ड योर आंसर, आंसर रिकॉर्ड नहीं करता वो, समझ रहे हो ना? सो सेव एंड नेक्स्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे सो इट्स लाइक योर स्क्रीन इज देयर, यू विल सी फर्स्ट क्वेश्चन। सर टैब पे जैसा होता था वैसा टाइप। काइंड ऑफ यस यस, हाँ आप लोगों ने टाइम में दिया है। लाइक यू विल सी क्वेश्चन नंबर 1 विच हैविंग बी 4 ऑप्शंस ए बी सी डी, उसमें से आपने सपोज ऑप्शन सी टिक किया, या फिर आपने किया ही नहीं तो नेक्स्ट, सीधा नेक्स्ट चले गए।
आपने सी टच किया पर आपको रिव्यू करना है, तो आप इसको भी नेक्स्ट कर दो, तो भी वो नेक्स्ट रिव्यू में दिखेगा. बट इफ यू आर श्योर कि आंसर इज सी, then I think there is an option of next, save and next. So once you do save and next, then it comes question number 2, A, B, C, D. Then it comes question number 3, 4, 5. So save and next is important. Marking scheme is +4, -1, 0. Right है तो +4, गलत है तो -1, और कुछ नहीं attempt किया तो 0. Then third important point is at, जैसे अभी ये मुझे दिखा रहा ना, extend your class. Similarly, before 3 hours, it will start showing you time is running up. Please सबमिट, क्या बोलते हैं उसको, एंड एग्जाम. एंड एग्जाम करके एक लोगो दिखने लगेगा नीचे की तरफ, तो उसको आपको प्रेस करना है. सो दैट विल सबमिट ऑल योर आंसर्स प्रॉपरली. एंड फोर्थ क्वेश्चन जो आप लोग रोते रहते हो, पीसीएम सबके लिए कंपलसरी है, सबको पीसीएम देना ही है. बायोलॉजी ऑप्शनल है, जिसको बायोलॉजी देना है वो दे सकता है, जिसको नहीं देना मत दो. बट ओनली क्राइटेरिया इज डोंट इवन अटेम्प्ट इवन वन सिंगल क्वेश्चन. आपको ऐसा लगा अरे बायो के 4-5 क्वेश्चन तो बहुत चिल्लू आए, मैं कर लेता हूँ, so then it will be a difficulty checking करने में. Don't attempt even a single question. I will make sure PCM के मार्क्स मिल जाए आपको. ठीक है. सो कल टेस्ट है, पढ़ाई करो अच्छे से. कल टेस्ट है सुबह 10 बजे. चलो 29 seconds, we are done. Thank you very much. Good night. हरि बोल, हरे कृष्णा, धन्यवाद. जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय हिंद. सर वो मैथ्स का टाइप इट आउट 15 seconds फास्ट. हाँ हाँ, यस प्रणव, आपका आई विल डू इट. डोंट अटेम्प्ट एनीथिंग बस. और आई एम सेइंग इफ यू हैव द गट्स अटेम्प्ट इट एंड लेट्स सी कितना आएगा, क्या आएगा. और अदरवाइज डोंट अटेम्प्ट. बाय.